Namaste and welcome to another episode of Baat Career Ki with my mentor, a platform where we have honest conversation regarding career choices and journey that shape them. Presented by my mentor, this platform is dedicated to helping students and parents make informed, confident career decisions with right guidance at the right time. Through this series, we bring you real stories, real insights, and real guidance from experts who have been there and done that. Because career decisions aren't about pressure, they are about clarity. We welcome Dr. Saurabh Agarwal, sir, founder and manager of Madhur Rao Scindia Public School, Bareilly. Hello, sir. Welcome to Baat Hello. Career Ki. Actually, it would be a really great pleasure for us if you can share a glimpse of the journey with us today. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरी करियर की स्टार्ट अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16 एक्चुअली, विच इज प्रिटी यंग। आजकल की बात सुनते हुए लोगों को लगेगा कि बहुत कम उम्र में था, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ आई हैड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन बिजनेस, which was my family business of sugarcane industry, something very different. Then I'll fast forward it. sugarcane industry के साथ साथ मैंने अपनी qualification भी पूरी करी। I did my professional qualification, and thereafter I did a jewelry business which ran for 25 years, which is still there, of course. And then we entered this field of education in 2004. And if you talk about के आप कैसे स्कूल में आए, कैसे स्कूल की स्टार्ट हुई, so that is a very interesting story because I was actually initially born in Gwalior, and Gwalior, as you all know, Sindhyas के लिए जाना जाता है। Sindhyas are from Gwalior, so we had a very close connection with the Sindhya family, starting from Rajmata Sindhya। तो उनके घर से हमारा आना जाना रहता था, वो लोग भी हमारे घर आते थे। So Madhav Rao Sindhya ji, the late great Madhav Rao Sindhya ji, when he was alive, he had a vision कि मैं एक chain of schools पूरी बरेली में, पूरे इंडिया में खोलना चाहता हूँ। एंड ऑलरेडी उनका एक स्कूल चलता है जो फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट पे, द सिंधिया स्कूल, व्हिच एवरीबॉडी नोज अबाउट इट इज। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी रीजंस है उसमें वो एक रॉयल ट्रस्ट के अंडर में आता है एंड उसकी कोई ब्रांच या फ्रेंचाइज नहीं हो सकती। सो ही सेड कि आई वांट अ डिफरेंट सेट ऑफ स्कूल्स जिसको मैं बढ़ा सकूं पूरे हिंदुस्तान में, उसको फैला सकूं। एंड इवन ही हैड विजन्स कि हम उसको आगे जाके अब्रॉड में भी खोलें, लाइक होता है बहुत सारे। तो he shared this with our family. We got this opportunity, and we said, okay, why not? And but as fate would have it, 2000 में he passed away in a helicopter crash, as we all know, and the project got shelved. So thereafter, his son, who's now a cabinet minister, His Highness Jyotiraditya Scindia ji, he said कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं, बिकॉज ही इज अ डिफरेंट मैन, डिफरेंट विजन, वी रिस्पेक्ट हिम। बट ही सेड कि ऑफ कोर्स मेरे फादर का ये विजन था, तो मैं जो है उसको उनके नाम से एक स्कूल की स्थापना कराना चाहता हूं, एंड आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी एंड द नेम। देन ही रोट अ लेटर, कांग्रेचुलेटरी लेटर, एंड ही प्रॉमिस्ड अस कि आपको जब मेरी जरूरत होगी आई विल कम, एंड आई विल कम एट द इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल। So that's how this school came about in 2004 in a very small space called Rampur Garden, जो अभी भी है। And after a couple of years, we opened this second school in Shiv Garden, and we started with a small strength of 130 students. Everybody deemed us as a failure जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था, although it had a big name of Madhav Rao ji, but सब लोगों ने यही हमसे कहा था कि ये स्कूल नहीं सरवाइव करेगा। But as fate would have it, as God's blessings, or I should say, I always believe in never to quit. So I said we'll carry on the good work, hard work always pays, quality education always pays. तो वो हुआ, एंड वो 130 से धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, एंड वी रीच्ड विद इन अ फ्यू इयर्स, वी रीच अ स्ट्रेंथ ऑफ 3500 स्टूडेंट्स। एट प्रेजेंट वही स्ट्रेंथ हमारे दोनों स्कूलों की है, एंड वी हैव continually maintained it for the past 22 years. This is, in short, you can say my career highlight, as you can say. And I'm very proud of the fact that I was given the opportunity by Sindhyas, and we really are thankful to the Sindhya family. We are still in contact with him, and he often sends his blessings to us.
and we were fortunate in 2020-23. We were the only educational institution in the whole of Uttar Pradesh to be awarded by the UP Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji for the best school in the state. So we are the only school to get this award in 2023, and I was for the fortunate winner, one to get this award on the behalf of the school. That was a really great Yeah. journey, actually. Yeah. You said that you started at a very early age, which Right. was 16. 60. Okay, so what was one thing that drove you to this business field? Actually, as I said, I think so. We never had the thought कि भी हम इस फील्ड में आने वाली. You're talking about अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, सॉरी एजुकेशन की अगर आप बात करें, we never thought. वो कहते हैं ना कि fate would have it. Sugarcane industry, something very different. Then coming to jewelry business, which I still have, that is something very different. But connection with the Scindias was the turning point. They had the vision कि हमको एजुकेशन की फील्ड में या स्कूल्स को एक चेन बनानी है. दैट्स हाउ दिस थिंग केम अबाउट कि वो अपॉर्चुनिटी जब उन्होंने हमें दी तो हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा नोबल कॉज भी है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी एसोसिएटेड विद द सिंधिया फैमिली, विद द सिंधिया ब्रांड. So that's how this change came about, and we got this opportunity. We are the fortunate. Okay. Yeah. All right. So as you said that when we step into a field or whenever we go for something new, we always face a failure. Yeah. So what is one thing that drives someone to go against that failure and proceed further? Never to quit. I believe in that philosophy. Have faith in yourself and in God. That is my philosophy of life. I never shy away from any challenge, any competition, and failure will be there in life. As सब इंसान कोई ना कहीं हम लोग फेलियर होते हैं. कोई भी नया विजन, नई चीज करने की कोशिश करते हैं, उसमें फेलियर मिलता है, या कोई हम एग्जाम देते हैं, कभी कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. बच्चों से भी मैं ये बात कहता हूँ, देयर विल ऑलवेज बी फेलियर्स इन लाइफ. नोबडी इज परफेक्ट. देखिए हम सब इंसान हैं, गलती भी करेंगे, हारेंगे भी, फेल भी होंगे, बट द मेन थिंग इज नेवर टू क्विट. आप कैरी फॉरवर्ड योर विजन, आप उसमें लगे रहिए, आप उससे सीखिए. हमेशा फेलियर आपको ये बताता है कि आपने क्या गलती करी थी, उस बात को आप नोट करिए. जब आप उस बात को नोट करेंगे तो आप उससे कुछ सीखेंगे और अगली बार वो गलती नहीं दोहराएंगे. जब नहीं दोहराएंगे तो हमेशा सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे मिलेगी. और अगर आपको अपने आप पर फेथ है और ऊपर वाले जिसको भी आप मानते हैं, गॉड के ऊपर फेथ है, सक्सेस मिलेगी. ऐसा हो ही नहीं सकता. दैट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ. आई बिलीव कि अगर ऐसा सब लोग कोशिश करें. मैं अपने स्कूल में भी बच्चों को हमेशा, जो मेरे यहाँ से पढ़ के जाते हैं और जो करियर बनाने की बात करते हैं, मैं सबको एक ही मैसेज देता हूँ कि बेटा, always believe in yourself, believe in your capabilities, and believe in God, and never shy away from any challenge. Success will be at your feet one day or the other. ये बहुत जरूरी है. And sir, talking about success, what is your definition of success? Which gives you happiness. Success is very relatable question depending upon individual to individual. मेरे लिए सक्सेस हो सकता है मेरे मन की खुशी हो. आपके लिए सक्सेस हो सकता है मे बी फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो. थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए सक्सेस का मतलब कुछ और होगा. बट वन थिंग विच इज ड्राइव्स एवरीबडी, वन कॉमन फैक्टर इज हैप्पीनेस. जो आपको खुशी दे, दैट इज सक्सेस. जैसे मुझे अगर मैं अपना काम में खुशी मिल रही है मुझे, तो आई बिलीव कि आई एम सक्सेसफुल इन लाइफ. आदमी क्यों काम करता है? फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं मानता हूं इस बात को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट खुशी या जिसमें मुझे मजा आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव कि सक्सेस इज ऑलवेज रिलेटेबल टू इंडिविजुअल, बट कॉमन बाइंडिंग फैक्टर शुड बी हैप्पीनेस एंड content in life. Okay, I have one question. So actually, like ever in your life, like through now, have you ever doubted your path? I don't think so. I am very happy with whatever I have achieved in life, and I've never doubted.
I believe that I am very fortunate to be given these type of opportunities. जो भी मैंने काम किया, मैं हमेशा आई एम थैंकफुल टू गॉड. आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड कि मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दी, लोगों को नहीं मिलती है. And I'm very happy and very content in whatever I'm doing, and the success which I have achieved at my age, I'm very happy. So I have no regrets and no doubts about anything. Okay, all right. And considering your journey, at what point will you weigh this fate and efforts? Like, what percentage would you give for fate and your efforts? See, fate is one thing which is relevant in everybody's life. जैसे मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में शो के आपके कहा कि एज फेट वुड हैव इट के मुझको ये अपॉर्चुनिटी मिली. तो फेट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एवरीबॉडीज लाइफ. हर एक को वी ऑल बिलीव इन फेट. हर एक की अपनी अपनी डेस्टिनी होती है. देखिए, एक मजदूर भी काम करता है और एक बिजनेस में एक अच्छा कोई बड़ा आदमी जिसे कह सकते हैं फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूं, वो भी काम करता है. बट सबका अलग अलग फेट होता है. तो आई डू बिलीव इन फेट, बट फेट अलोन डजंट ड्राइव एनीबॉडीज लाइफ. अगर आप ये सोचते रहे कि भाई ये तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ है, तकदीर जो है आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है कि आप उसमें कितना एफर्ट अपना डाल रहे हैं. अगर आज मैं सोच के बैठा रहूं मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है, तो आई विल नेवर बी सक्सेसफुल. सो ऑलवेज बिलीव कि हाँ भाई जो भगवान ने लिखा वो तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ मेरे अपने एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ एंड आई बिलीव एवरीबॉडी शुड फॉलो दैट. Actually, that was really insightful. And apart from that, can you please share a moment with us, like wherever you felt like this particular person or this particular situation is out of my hand and I can't handle this, like pressure, you can say. How would you handle something like that? प्रेशर्स लाइफ में देखिए बहुत आए. आई कैन नॉट सिंगल आउट वन मोमेंट, बट हाँ, अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूं, द लॉस ऑफ माय पेरेंट्स वाज अ बिग फैक्टर इन माय लाइफ. मैं हमेशा आज भी उस मौके को सोचता हूं जब व्हेन माय मदर पास्ड अवे. स्कूल खुलने के 2 ही साल बाद शी पास्ड अवे. सो दैट वाज वन मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई फेल्ट कि सब कुछ चला गया मेरा. व्हाट विल आई डू? बट देन आई बिलीव्ड कि नहीं, मेरी माँ मुझसे कहती थी कि नहीं, आपको अभी बहुत कुछ करना है बेटा, हिम्मत रखो. सो दोज वर्ड्स वर इन माय माइंड. मेरे दिमाग में वो वर्ड्स थे. सो मैंने कहा नहीं नहीं, ये मुझे मेरी माँ ने ही सिखाया था, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. एंड में वही बात आ जाती है कि नेवर टू क्विट वाली बात, वो हर जगह फॉर्मूला आ जाता है. तो मेरी मदर ये बात मुझसे कहती थी. तो दैट वाज वन टाइम के आई फेल्ट, एक मोमेंट मुझे ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ चला गया एंड आई विल नेवर बी एबल टू बी द सेम पर्सन. लेकिन आई गॉट अप. गॉड वाज ग्रेट एंड हियर आई एम. मेरे फादर जब he passed away because it was a very difficult time for me. I was going through his illness. बीमारी में वो थे बेचारे, बहुत काफी टाइम से वो परेशान थे. उनको मैंने बहुत तकलीफ में देखा. वो एक मेरे लिए बहुत इमोशनल और मोमेंट था लाइफ का. सो दीज वर द 2 मोमेंट्स इन माय लाइफ व्हिच आई थिंक वर द हार्डेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ. अगर आप प्रोफेशनल की बात करें, स्कूल की अगर आप बात करें, आई नेवर फाइंड एनी प्रेशर. बिलीव मी. अगर रोज होता है कुछ ना कुछ. देखिए, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ अगर स्कूल में होगा तो वो भी एक प्रेशर, अगर आप उसको मान लें कि भाई किसी पेरेंट की कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी चीज है, दैट इफ यू टेक इट इज अ प्रेशर. इफ यू थिंक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब या पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर स्कूल, देन इट्स ओके. आई नेवर टेक इट एज प्रेशर. मैं प्रेशर कभी नहीं. So next question, sir, what keeps you motivated after all these years in this business field, or if I say now you are in the education field, what keeps you motivated throughout these years? मोटिवेशन लाइफ में मेरा मोटिवेशन तो ये रहता है कि मैं कुछ और बेहतर कर पाऊं. और अब इस स्टेज पे मुझे ये लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊं. देखिए, अपने लिए सब करते हैं, एंड आई हैव अचीव्ड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, आई हैव अचीव्ड अ लॉट.
But I also believe that my duty is towards society, कि सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो ही मुझे मोटिवेशन रहता है। इसीलिए मैं थोड़ा सोशल वर्क वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ, हेल्पिंग दी पीपल हु नीड हेल्प इन वट एवर वे आई कैन। विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो वो मैं उसके लिए थोड़ा सा काम करता रहता हूँ। एंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट का ये है कि मेरे यहाँ सारा स्कूल, जो दोनों स्कूल है मेरे, उनमें टोटल स्टाफ इज फीमेल, ऑल द टीचिंग स्टाफ इज फीमेल, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट। ये चीजें मुझे मोटिवेट करती रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टिल स्ट्राइव कि मेरे स्कूल में कोई भी कमी ना हो, जो अच्छे से अच्छा लेटेस्ट डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, या बच्चों के लिए फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश। That's really great, sir. Now, coming to the education field, one thing that you would like to, like one advice that you would like to give to youngsters nowadays, students. स्टूडेंट्स को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। स्टडीज का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। लाइफ में आपको कुछ भी करना है, यू वांट टू बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ, मैं हर बच्चे को ये बात बोलता हूँ कि आपको सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको फैशन डिजाइनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वट एवर यू वांट टू बिकम, बट प्लीज कंप्लीट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। दैट इज वन थिंग जो आपकी लाइफ में, जिंदगी में हमेशा काम आई। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज के जमाने में भी और पहले भी रेलेवेंट थी, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान इन लाइफ। मेरे को बच्चे आके बोलते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि बेटा आपको क्या जिंदगी में करना है, तो बोले सर हमें यूपीएससी करना है या हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, माई ब्लेसिंग्स आर देयर, बट अगर नहीं हो पाया तो बैकअप प्लान क्या है, व्हाट इज द सेकंड लाइन? तो समटाइम्स दे आर ब्लैंक, सर सोचा नहीं। मैं ये कहता हूं वो सोच के रखिए, उस समय आप क्या करेंगे। यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकंड बैकअप प्लान कि अगर ये मेरा चला नहीं या ये मैं नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, तो आई विल डू दिस। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आजकल की जनरेशन के लिए। फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स, जो आपको करना है लाइफ में वो जरूर करिए आप, बट ऑलवेज हैव अ सेकंड लाइन, अ बैकअप प्लान इन योर लाइफ। यू विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल डूइंग दैट। एंड उसके अलावा देखिए, मैं अगर ऑनेस्ट बात करूं, पढ़ाई के लिए सभी लोग कहते हैं, लेकिन अगर हार्डवर्क नहीं होगा, डेडिकेशन नहीं होगा, अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं होगा, तो लाइफ में कोई भी चीज आप नहीं अचीव कर पाते। दैट इज वेरी कॉमन थिंग, मैं हर बच्चे को बोलता हूं, लेकिन ये रेलेवेंट, ये पहले भी थी, आज भी रेलेवेंट। कंपटीशन बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ हमारे बच्चों की एबिलिटी भी बढ़ रही है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, एंड आई एम वेरी प्राउड। जेन जी जनरेशन जो है, वेरी स्मार्ट, and they are much more capable than we are. So I think so कि अगर ये चीज फॉलो करेंगे दोनों चीजें बच्चे, तो they'll have a great career in life. And one thing that you would like to share with us from your student life? स्टूडेंट लाइफ, हमारी स्टूडेंट लाइफ तो आजकल के बच्चों की तरह से नहीं थी, बिकॉज हमारे टाइम पे तो इतनी मौज मस्ती शायद नहीं होती थी। आजकल के बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और अच्छी बात है, बट हमने बंक भी किए हैं, ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, मेरे बच्चे भी देखेंगे। बंक्स भी किए हैं, जाके फिल्म भी देखी है बाहर। बच्चों ये मत सुनना, ये करना मत। लेकिन देखिए, एक लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ये भी एक मजा होता था उस समय। लेकिन हाँ, डांट भी पड़ती थी। आजकल बच्चों को डांट नहीं पड़ती है। उस समय फेल भी होते थे, वो बात अलग है कि आई वॉज द ब्लेस्ड वन, में कभी फेल वगैरह नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, दैट इज द फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल, बैंगलोर। मैं वहां का एलुमनाई हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। सो हाँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन ओवरऑल मजा आता था। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे याद आती है, आपने स्टूडेंट लाइफ की बात की, तो मैं जब पढ़ने गया था वहां पे, तो वहां की भाषा कन्नड़ है। कर्नाटका में, बैंगलोर में लैंग्वेज बैरियर बहुत था। एंड आई वॉज द नॉर्थ इंडियन, हम हिंदी स्पीकिंग होते थे, तो शुरू में तो इतना दिक्कत आती थी कि लोगों को समझ में नहीं आता, बट आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे जो है सब लोगों ने इतना
दे सपोर्टेड मी मेरे, और आज भी आफ्टर 45 years नियरली, या 50 years आई शुड से, आज भी हम लोगों का वो फैप्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, एंड वी आर स्टिल इन टच विद ईच एंड एवरीबडी, और दे वेलकम विद दी ओपन आर्म्स। तो दैट इज अ ग्रेट फीलिंग जो मेरे को स्टूडेंट लाइफ से याद आती है। आपने बात पूछी, तो लोग कहते हैं नॉर्थ साउथ का बैरियर है, लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। दे लव्ड मी एंड दे स्टिल लव मी एंड आई लव देम। Okay, like I think that is very something very precious to cherish. Yes, that is very close to my heart, and I still meet them. मैं मेरे वो क्लास 12 के, क्लास 10 के, क्लास 5 के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ के, आज भी हम टच में हैं। आज भी हम लोग रेगुलरली मिलते हैं। सब बड़े हो गए, सबके बच्चों के बच्चे हो गए, बट वी ऑल लव ईच अदर। वो एक चीज याद रहती है। Yeah, that's very long time. Yes, that is. Okay. So one last thing that you would like to advise the parents as well. Yes, that is बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा, और पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ। देखिए, बिलीव इन योर बॉड, आप अपने बच्चों पे विश्वास करिए, अच्छी बात है, एंड करना भी चाहिए, बट एक साथ में मैं एक थोड़ा सा इसमें हेल्थ वार्निंग जरूर देना चाहूंगा। डोंट बी ओवर पोजेसिव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड डोंट ट्रस्ट योर चाइल्ड ब्लाइंडली। ऐसा नहीं करिए। ये आप अपने बच्चे की भलाई के लिए मैं आपके बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी कई कमियां ओवरलुक करते हैं जो उसी के फ्यूचर के लिए गलत है। प्लीज थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। डोंट ट्रस्ट वॉट एवर द चाइल्ड इज सेइंग ब्लाइंडली। गो टू द फैक्ट्स एंड देन इन्वेस्टिगेट एंड देन मूव फॉरवर्ड। ये एक बहुत क्रूशल चीज है जो मैं आजकल महसूस करता हूं, वो मैं पेरेंट्स को जरूर बोलना चाहूंगा। एंड उसके अलावा बच्चे बहुत आजकल स्मार्ट हो गए हैं, आप उनको मौका दीजिए लाइफ में। वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, प्लीज। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इस तरीके के कि सर देखिए, सिंगर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है। मैं कहता हूँ चांस दीजिए लाइफ। आपको या हमको वो मौका नहीं मिला, इनको तो मिलना चाहिए। दे ऑल डिजर्व अ चांस। और आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हर चीज में, हर फील्ड में दे रखी है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स कोटा हो गया, पहले इतनी जॉब्स नहीं होती थी, अब आजकल स्पोर्ट्स के थ्रू भी आपको जॉब्स मिलती है। तो आप अगर वो कोई स्पोर्ट खेलना चाहता है बच्चा, लेट हिम डू दैट, उसको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां भी मिलेंगी। सो आई थिंक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा। एंड हाँ, लास्ट में बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं एक लास्ट बात जरूर ऐड करना। हो सकता है बहुत लोगों को ये बात शायद ना मेरी पसंद आए, बट आई विल बी वेरी ओपन टू द फैक्ट दैट अपने जो टीचर्स हैं उनकी कमी अगर है भी, उनकी कमियों के बारे में या उनकी डिसरिस्पेक्ट प्लीज बच्चों के सामने ना करें। अगर आप अपने बच्चों के सामने अगर टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो टीचर की रिस्पेक्ट बच्चा कैसे करे? ये आजकल मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं, और ये मेरी एडवाइस भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है सभी पेरेंट्स से कि प्लीज ऐसा ना करें। ये जो है गलत है, और बच्चों के लिए भी गलत है, और ये ओवरऑल सोसाइटी। Yes, that's really helpful. Yes. Okay. So now we'll come to the end of the question answer round here. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts with us. And now we'll start with the interesting part of the show, which is the rapid fire question round. Okay. I hope you'll enjoy it. Yeah. Okay. Hope so. You will not put me in a soup. No, I will not. Okay, so we'll start here. Chalk or smartboard? Chalk. Okay. Discipline or creativity? What matters more? Discipline. Okay. Early morning assembly or classroom interaction? Early morning assembly. One habit every student should develop? Be punctual. Okay. Yeah. Books or digital learning? Books any day. Okay. Strict or friendly? How students see you? Friendly. Okay. I'm very friendly with students that I think everybody can vouch for. Yeah, I can actually vouch that for as well. Okay. So one quality that defines a good teacher? She should be accessible. मतलब everybody, अगर मैं 2 लाइन इस पे बोलूं, a student should feel comfortable कि I can relate to the and talk to the teacher anytime.
That quality should be there with any teacher. Yeah, without hesitation. Without hesitation, he or she can approach the teacher. अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो they can approach. They should not hesitate. They should not fear the teacher. अगर ये healthy relation होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, environment भी अच्छा होगा और results भी अच्छे. Yes, definitely that's true. And exams or practical learning? I still believe I am old fashioned. Exams are a must, and I think बच्चे शायद ना agree करें, but I still believe exams. Okay. And one piece of advice for today's student? Be serious in studies. I feel कि बच्चे वैसे बहुत स्मार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं स्टडीज के बारे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता. Be serious. Okay. Tea or coffee during school hours? I love tea any day. Yeah, it's everyone's favorite. Okay. One biggest challenge students face these days? Career, job, future career options are there. A lot of their children are pretty confused these days. What to choose, what not to choose, because they feel कि job options किसमें होगा. So that I feel is one problem which students are facing, which I can see a relevant problem in. Okay. And one skill school should teach their students? That's a tough one. See, skill there we talk about, अब तो कौशल बोध भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. स्किल लर्निंग पे हमारे प्रधानमंत्री जी बात भी कर रहे हैं. बट मैंने जैसे कहा कि स्किल की अगर हम बात करें तो स्कूल को ये जरूर देखना चाहिए, या कोई भी स्कूल हो, कि एक ऐसी चीज बच्चों को जरूर दे देनी चाहिए कि लाइफ में काम में आए. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज पे मैं बहुत फोकस करता हूँ हमेशा. हमारा स्कूल बहुत फोकस करता है. तो यू शुड बी अ गुड ओरेटर. व्हाट आई फील इन लाइफ, दैट विल हेल्प यू इन एवरीवेयर. और ये मेरे स्कूल का एक खास एक ट्रेडिशन भी रहा है. आई आस्क एवरीबडी, बच्चे में स्टेज फियर नहीं होना चाहिए. वो जहां भी जाए, ही और शी शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज विजन या हिज थॉट्स. तो अगर ये होगा तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे. तो ये स्किल जरूर होनी चाहिए सब में. And marks or knowledge, what truly matters? Knowledge any day. Marks doesn't define any child's caliber. Knowledge. One change that you would like to bring in education system? I still feel that the Indian education system is the best in the world. We need not temper it very much. And बच्चों को एक जो हैबिट है पढ़ने की वो रहनी चाहिए. और बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ. I still believe in the examination systems. I still believe in regular boards which are happening, and I still believe कि एक certain class के बाद pass and fail का option होना चाहिए. And I still believe कि I may sound very old fashioned, but जो हमारा पुराना सिस्टम है एजुकेशन का, जो बहुत समय से चला आ रहा है, that is still the best, with small changes which has been proposed in NEP, that I agree. Okay, so here we come to the end of our session today. Thank you so much, sir, for cooperating with us and sharing your thoughts and opinions with us. Then it is my pleasure that I was given this opportunity to share my thoughts with the students and everybody and all your audience. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. So now here we come to the end. As we come to the end of today's episode, one thing becomes clear. Being an academician is not just a profession. It is the responsibility of shaping futures and nurturing potential. A heartfelt thank you to Dr. Saurabh Agarwal, sir, for sharing such meaningful insights and experiences with us today. Your journey truly inspires both students and teachers alike. Thank you. To all our viewers, remember, career decisions are not about following the crowd, but about understanding yourself. Take your time, seek the right guidance, and trust your journey. And if you ever feel confused, my mentor is always here to guide you, because the right direction can change everything. Thank you. Thank you.